करवाने दी। So please start the session. Okay, yeah, thanks. I was waiting for Thank you, you. sir. All right, Yeah. so all right, guys. So let's start with the second session of this. You can say the sessions that has been sponsored by SET. So what we'll do is we'll first quickly revise what we have seen yesterday. So we have seen the properties, okay, of signals. In fact, we have seen the signals, different types of signals we have seen. Then we have seen that the periodic signals are of utmost importance and how we can determine the periodicity of sinusoids. We see that the continuous time sinusoids are having, not always they are periodic, if they are, especially when there are multiple sinusoids that are present in an equation. So you need to be very careful while calculating the periodicity of such sinusoids. All right, so let's go ahead, guys. So we are going to talk today about the systems, because this course is all about signals and systems, and we have seen signals so far. Only one class of signals we have seen, periodic signals, and those signals we have already seen. Now let's talk about systems, okay, because this systems part is also extremely important as far as the gate point of view is concerned. All right, so let's start with the systems. तो इसके पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये systems क्या है. देखो, सिग्नल्स के बारे में हमने पढ़ लिया. सिग्नल्स जो है वो इट्स अ काइंड ऑफ अ फंक्शन और अ वेरिएबल. लेट्स से माय वॉइस सिग्नल. वॉइस इज अ सिग्नल. System is the kind of a microphone. You can consider this as a kind of a system, because what it does is to simply take an input, process it somehow, and gives output. So basically a system is in fact mathematically a relationship between the input and the output. So to just speak in very vague terms, I will say that a system is in fact a mapping from the input signal to the output signals. It's a mapping between the signals. So I will say that a system is something like this. So let me present my screen here. Yes. So what I said is this system you can consider is a kind of a black box where you give some input and take some output. So that input can be anything, like say for example x of t. It can be a continuous time signal, it can be a discrete time signal, and we have the output say y of t. Now इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम सिस्टम बोलेंगे. मतलब अगर मेरे पास y of t है, let's say for example I'm having the output, okay, I'm having this output as y of t. All right, so that output and what is the relationship of the output with that input is nothing but the system. So y of t, if I simply write it as, let's say y of t equals to, let's say for example 2 times x of t, okay, whatever it may be. So this can be anything. This is a kind of a typical relationship between the input and the output. So this is what is called as a system representation. अभी ये systems जो है काफी अलग अलग टाइप्स की होती है. सिस्टम्स जैसे मैं कहूंगा ये माइक्रोफोन एक सिस्टम है, तो ये माइक्रोफोन एक टाइप की सिस्टम है. तो ये डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर व्हाट इट गिव्स द आउटपुट, दिस सिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू various types. Okay, now what are the various types of a system? Okay, that's what we are going to see now in today's class. So what we are going to do is the systems can be classified into various types or various categories depending on its characteristics. So what are those characteristics of the system? So that's what we are going to see. Okay, so the first characteristic of a system can be defined as, well, there are various categories, as I said, the characteristics of a system. So let's look at the very first property of a system. Let me just bring this whiteboard. Let's make it silent. Yeah. All right, as I said, there are system properties that we are going to see. So system properties is what we are going to see today. So system are having various properties,
And the first property that we are going to see is the property of memory. So system is said to have a memory if it saves something. Like for example, this bank account can be thought of as a kind of a system with memory. अब मानो कि आपका पैसा सेव ही नहीं हो रहा है तो वो बैंक अकाउंट किस काम का? So bank account, it saves some amount of money. So for example, bank account can be thought of something like this. Let's say for example, y of n is the current output. That means the current money that you have saved so far. It is in fact a summation of all the money you have saved right from minus infinite to the current time t. Let's say for example, I can represent that as k equals to minus infinite to the current time n, and this is all about your money. Let x be the money that you have been saving all this while from your lifetime and till the current date n. Okay, this is the kind of a value that you have been saved. So there are various types of money that you have, various amount that you are saving every other day, and this money is getting added all together to get the current amount of money. So see, the current output is dependent on not only the current input but also on either the past or the previous or maybe the future values of the input. So such systems are said to be the system with memory. Okay, such systems are said to be with memory. मतलब वो सिस्टम जिसमें इनपुट की इंफॉर्मेशन सेव की जाती है. Okay, the current output, if it is dependent on the previous or future values of the input, then it is said to be a system with memory. Okay, so I'll just show you one example. So I'll take some examples here. Say for example, so let's say y of t equals to, let's say, t times x of t. Let's take this input, let's take this system. Now first of all, let me tell that whether this system is it system with memory or without memory. See, in order to calculate, पहले हमको क्या देखना है कि ये सिस्टम को देखो, मतलब current value of the output निकालो. Current value, is it dependent on only the current value of the input? If it is, then it is said to be a memoryless system. उसको save या फिर storage करने की जरूरत नहीं है ऐसे systems को. देखो यहाँ पे कि current value of output is depend on only the current values. The current values of output is dependent on only the current value of input. So current output is dependent on only current input. Okay, there's no storage that is required, there's no past values or future values that are required. So such systems are said to be a memoryless system. Memoryless, जिसमें कोई स्टोरेज की जरूरत नहीं होती, उस सिस्टम्स को बोलते हैं मेमोरीलेस सिस्टम्स. ओके, सो और एक एग्जांपल देखते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अभी ये मैंने सिस्टम ले ली. लेट्स से फॉर एग्जांपल नंबर 2, y of t equals to, let's say, x of t plus x of, let's say, t minus 1. So what does it do? It is the current value of the output. The current output is dependent on not only the current input but also on the past input. So in order to save the past input, we'll have to require a kind of a memory, right? We'll require a memory, क्योंकि मान लो कि t equals to 2 है, तो ये क्या हुआ, t2, और ये क्या हुआ 1. That means वो past values के ऊपर भी वो dependent है. So such systems are said to be systems with memory. Okay, yes, will be systems with memory. So such systems are said to be systems with memory. All right, so let's look at the other example, and you should tell me whether this system is with memory or without memory. Now I'm giving a problem to you, and tell me whether this system is with memory or without memory. So y of n, let it be equals to x of minus n. So who is going to tell me that quickly? They can unmute your microphone and tell me. Who is Sorry, going to sir, tell if you me? can just pardon. Yeah. So what was the question, if you can just pardon? The question is whether this system is a memoryless system or a system with memory. As I said, in order to identify whether, yeah, can you tell me please?
Memoryless. No, it is a system with memory. As you can see the current output, right? This is the current output. The current output, is it dependent on the current input? No, it is dependent on the past input. Okay, so for example, if n is 2, it is dependent on -2, the previous value, right? So it is the past input. So in order to save the past input, see, we have only the current value with us. So is the current value dependent on only current input? If not, it is a memory system. Okay, if the system is dependent on only the current values of the input, then only you can say that the system is memoryless. Otherwise, it is said to have a memory. So here in this case, let's say for example, if n is 2, it is dependent on x of -2, which is previous value, and previous value we have to save it. I mean, it's not dependent on only the current input. It is dependent on the past values of the input, or maybe the future also. Say for example, if I'm taking another example, say for example, example number 4, y of n, let's say for example, x of n plus 1. Now, can you tell me whether this system is with memory or without memory? Now, this is very System with easy. memory. Yes, it's of course it is indeed with memory, because in order to calculate the current output, we require some future input. Okay, so current output, we require a future input. Now this is kind of a predictive system. जैसे कोई भाग्य बताता है ना, आपका फ्यूचर जो है, आपका वो बोलता है कि अभी अभी कर्म कर लो, है ना, तो आपको आगे में जो है ना वो सफलता प्राप्त होगी एंड ऑल. So these kind of predictions, okay, or maybe for example, if you are ready to say, I can just give an example of this. You know, the current output is giving on the future inputs. So for example, if you perform better, I can say that, okay, I may be able to retain your current position. If you perform better consistently over complete year, I can say that, okay, fine, I can retain your position in my company. So it is something like this. I mean, you are just predicting the future that yes, you'll be performing better. Okay, so it's like just prediction. You require some because you'll have to save the feedbacks, you'll have to save everything, you'll have to save the data and whatnot. So this is what is called as the memoryless systems or systems with memory. So the thumb rule is always see whether the input. So let me write that, because so that you will just remember these things. So current, so let me just write it properly. Current output must be dependent on only current inputs. If it is, then it is said to be a system. It's a memoryless system. Memoryless. The thumb rule. Thumb rule for a memoryless system. It's very clean. All right, so this is a first property that we have seen. Let's look at the other property of a system. Okay, this is all about the memoryless system. Now let me tell about some other properties. Okay, the second property that we are going to look at is this, what is called as a causality property. Causality. ये causality property मतलब क्या? Causality property ये बोलती है कि current output must be dependent on current या फिर past values of the input. Okay, it's fine, but not the future values of the input. That is what is called as a causal system. मतलब आज का output वो आज के input या फिर पिछले values of input पे dependent रहा तो चलेगा, पर future values पे वो कभी dependent नहीं रहना चाहिए. It's like a cause and effect. ठीक है, मतलब कोई भी चीज का अगर कॉज होता है तभी तो इफेक्ट होता है. आप किसी को थप्पड़ मारोगे तभी वो सामने वाला थप्पड़ मारेगा. इट्स लाइक अ कॉज एंड इफेक्ट. सो it's a kind of a cause and effect. It should not be dependent on the future values of the input. So what I mean by that is, let's take an example. You'll understand it much better. So example I'm going to tell is this one: y of t, let's say, equals to x of t square. Okay, so is it a causal system? Of course it is not a causal system, but you can see that this current output is dependent on future inputs. Future
input. In fact, the problem that we have seen previously also, okay, this problem here, this is a causal system. This is a perfectly, this is not a causal system. This is again a non-causal system. Non-causal system. This is again a non-causal system. I'll just explain why. See here. What is the definition? Definition says that, let me just declare that in bold, the current output must be dependent on only current or past inputs, but not future. So that's the definition of a causal system. That's a definition of a causal system. Future values का मत बताओ आप, okay? If it is dependent on future values, then it is said to be a non-causal system. For example, I've shown that here. So this system is a non-causal system. एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. देखो गेट में ना प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो तब तक के समझ में नहीं आएगा. y of t, वही लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं. y of t equals to x of minus t. अभी कभी मैं कंटिन्यूअस टाइम के एग्जांपल ले रहा हूँ, कभी मैं डिस्क्रीट टाइम के एग्जांपल्स ले रहा हूँ. कॉन्सेप्ट सेम है. ओके, अब कौन बताएगा ये सिस्टम जो है ये कॉजल है या नहीं? फटाफट, who will tell that? Unmute your microphone and let me see. Yeah, again you got trapped. So it is again a non-causal system. Okay, I'll tell why. Okay, so just because there is a minus sign here, you may tend to declare this system as a causal system. क्योंकि आप अगर यहाँ पे t की वैल्यू अगर डालोगे, let's say for example 2, it is going to be dependent on the past values of the input. That's fine. But what if the t is minus 2? If the t is minus 2, it is going to depend on plus 2. That means this system definition must be valid for all the values of t. That I am declaring now, for all the values of t. Now, whatever the definition that I've quoted here, this must be valid for all the values of t. So let me write that. This must be valid for all the values of t. That's the symbol for all. For all the values of t, okay, that should be dependent on all the values. That this condition must be true for any value of t. Now, for this, in this case, this is not valid for all the values of t. For example, if t is positive, it is valid, fine. But what if t is negative? It is not valid. If t is minus 2, it is going to be plus 2 here. So it is dependent on future values. So this system, एक बार भी अगर वो गलत हो गया तो डिक्लेयर, एक बार भी वो, देखो आदमी को झूठा कब बोलोगे आप? कोई भी इंसान को झूठा कब बोलोगे? अगर वो हमेशा सच बोलता है तो उसको बोलेगा वो सच्चा इंसान है. पर उसने एक भी बार अगर झूठ बोल दिया तो आप क्या बोलेंगे? अरे नहीं भाई, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हम, दिस इज ये झूठा इंसान है, ये कभी भी झूठ बोल सकता है. सो एक बार भी अगर फंस गया, okay, then you cannot declare that system as a kind of a causal system. So this again is a non-causal system. और एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल से काफी ज्यादा समझ में आता है. और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ये देखो, ये मेरे फेवरेट एग्जांपल्स है. मतलब क्लास में ऐसे एग्जाम्स वगैरह ना, मैं ऐसे टाइप्स के एग्जांपल लेता हूँ. बच्चों के फिर कम मार्क्स आ जाते हैं, पर उसके बाद कॉन्फिडेंस उनका बहुत बूस्ट हो जाता है. देखो यहाँ पे, सो लेट इट बी, कौन बताएगा फटाफट? किसको अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं वो जवाब देगा, जिसको नहीं करने वो नहीं देगा. देखो गलत रहा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. अगर मान लो कि आपके अगर जवाब गलत है, will tell that causal system, non-causal system. Yeah, just a minute. Yeah, will tell that. Is it a causal or non-causal? Yeah, someone said that it's a causal, someone said that non-causal. Let me tell you that this is a perfectly causal system. Causal. Yes, it is a causal system. So don't get trapped here. Always see that current output. ये current है ना, current
आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट को देखो ना यार, बाकी सब चीजों को मत देखो। इनपुट बोले तो इसके अंदर का आर्गुमेंट, एक्स के पैरेंथेसिस के अंदर का आर्गुमेंट देखो क्या है, ये करंट इनपुट ही तो है। ये यहाँ पे फंस गए ना, मेरे को पता है आप कहाँ पे फंसे हो। ये यहाँ पे t+1, t+1 इज अ स्केलर, whatever may be the current. Let's say for example t is 2, this is only multiplying by 3, that's it. It is not dependent on the future inputs. Input का argument थोड़ी ना है ये, it is simply a kind of a multiplication factor. ये बात ध्यान में रखनी है आपको, या ऐसे गेट में जो है ना इसी टाइप से आपको सवाल में फंसा देते हैं, ओके, ऐसे घुमा फिरा के बताते हैं। So I think it's more or less very clear what is a causal system and what is not. So we have seen two such properties for a causal system and for a non-causal system. We have seen the memoryless system. अगर बता दो यहाँ पे is this system with memory or without memory? कौन बताएगा? memory. Sir, without है? With memory. with memory system. No, again it is without memory. See, इनपुट को सेव कर रहे हो क्या? इनपुट को सेव कर रहे हो क्या? इनपुट तो सिर्फ करंट वैल्यू पे डिपेंडेंट है और ये स्केलर है ना। t जो है, आपको अगर करंट t पता है तो t+1 तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, राइट? यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मेमोरी फॉर दैट। ओके, देखो +1 बोले तो मेमोरी नहीं है, ओके। मेमोरी इन द सेंस इनपुट्स को अगर आप सेव कर रहे हो तो उसको बोलेंगे कि वो सिस्टम विथ मेमोरी। मान लो कि मैं अगर ऐसा लिखता हूं एग्जांपल 4, देखो थोड़े कंसेप्ट्स पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं x of t+1, हाँ फिर उसको बोलोगे कि ये सिस्टम विथ मेमोरी है और ये नॉन कॉजल भी है, ठीक है। बट ये सिस्टम जो है ये परफेक्टली कॉजल सिस्टम है एंड सिस्टम विदाउट मेमोरी है। सिस्टम को मेमोरी की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल 3 में, एग्जाम्पल 4 में है, ओके। तो ठीक है, ये काफी हद तक मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका है। तो लेट्स गो अहेड। तो और एक प्रॉपर्टी देखते हैं। ये हो गए 2 प्रॉपर्टीज हमने देखी। हम तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं, सिस्टम की। तीसरी प्रॉपर्टी सिस्टम हम देखते हैं एडिटिविटी। ये है बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी, एडिटिविटी। सिस्टम एडिटिव है या नहीं ये पता करना है हमको, है ना। सो एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर मान लो कि मेरे पास एक सिस्टम है, मान लो कि हमारे पास सिस्टम है, ओके, उसको मैंने इनपुट दिया, उसका आउटपुट लिया। लेट्स से x of t इज एन इनपुट, y of t इज एन आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम पे 2 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, है ना। विल डू 2 एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ सिस्टम। हम ये देखेंगे कि पहले अगर मान लो कि मैंने एक इनपुट दिया, लेट्स से x1 of t, तो देखेंगे भैया आउटपुट क्या है। लेट्स से आ गया आउटपुट y1 of t। फिर हमने दूसरा इनपुट दिया, लेट्स से x2 of t। हमने फिर देखा कि आउटपुट क्या है। हमको देखा कि आउटपुट जो है वो y of t है। Let the input for input x1 of t, let the output be y1 of t. For x2 of t, let the output be y2 of t. अब अगर मैं x1 of t और x2 of t को ऐड करता हूं, x1t प्लस x2 of t को ऐड करता हूं, और अगर इनके इंडिविजुअल आउटपुट्स भी ऐड होते हैं, तो मैं बोलूंगा कि ये सिस्टम इज एडिटिव। इफ x1 of t plus x2 of t is giving you y1 of t plus y2 of t, and this must be valid for all t. If this is the case, then we can say that the system is additive. Then the system is additive. Then system is additive. और ये हर बार नहीं होगा, okay, this is not a trivial property. ये हर बार नहीं होगा। एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके पहले के जो है वही एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल, ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से वही एग्जाम्पल लेते हैं, y of t equals to x of t plus 1। बताओ ये सिस्टम एडिटिव है क्या? तो अब ये पहला एग्जाम्पल है, मैं बता देता हूँ। देखो क्या करना है, एक इनपुट दो x1 of t, आउटपुट क्या आएगा? ऑफ कोर्स जहां पे x है वहां पे x1 आएगा, क्योंकि इनपुट जो है हमने x1 of t दे रखा है। तो ये क्या आएगा, y1 of t क्या आएगा, y1 of t is equals to x1 of t plus 1। x2 of t अगर इनपुट दिया तो y2 of t क्या होगा, y2 of t is equals to x2 of t plus 1। अगर मैंने x1 of t और x2 of t को ऐड किया, मान लो कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और मान लो कि मैंने x1 of t प्लस x2 of t अगर मैंने इनपुट को दिया, तो आउटपुट क्या आएगा,
दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, y ऑफ t क्या होगा ये, तो x1 ऑफ t और x2 ऑफ t का जो भी आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, ये x1 ऑफ t प्लस 1 प्लस x2 ऑफ t प्लस 1. दिस इज नथिंग बट द थर्ड इक्वेशन. देखो 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 है क्या, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 है क्या, देखो यहाँ पे for this equation, for this 3 is equals to 1 plus 2. Therefore, this system is additive. Therefore, the system is additive. Additive. और ये अगर नहीं है तो आप बोलेंगे कि दिस सिस्टम इज नॉट एडिटिव. इसका भी हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे. देखो देखो जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं ना कर लो, है ना. तो ऐसे देखो कॉन्सेप्ट जो है आपको अभी नहीं तो बाद में कभी पता चल ही जाएंगे, पर आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा ना. उससे अच्छा यहीं पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो. टी प्लस 1 टी में मिल रहा है, एडवांटेज ले लो जितना एडवांटेज लेना है. देखो y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस 2. बताओ ये सिस्टम एडिटिव है या नहीं, कौन बताएगा फटाफट. एडिटिव. अरे वाह, वेरी गुड. सो दिस सिस्टम इज एडिटिव, इज अ एडिटिव सिस्टम. और ये गलत जवाब है. दिस सिस्टम इज नॉट एडिटिव. दिस सिस्टम इज नॉट एडिटिव. ऐसे तो फंसते हैं ना. दिस सिस्टम इज नॉट एडिटिव. देखो अभी प्रूव कर देता हूं मैं. देखो यहाँ पे, है ना. ऐसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है ना थोड़ा सा डामाडोल होगा, पर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाएगा. देखो यहाँ पे x1 ऑफ t इनपुट दिया तो आउटपुट क्या होगा, क्या होगा, y1 ऑफ t इज इक्वल्स टू x1 ऑफ t प्लस 2. ये हो गया पहला इक्वेशन. दूसरा x2 ऑफ t अगर मैंने इनपुट दिया तो आउटपुट क्या होगा, y2 ऑफ t विच इज इक्वल्स टू x2 ऑफ t प्लस 2. देखो गलती करने से ही सीखोगे. ओके, जो बंदा सही जवाब दे रहा है उसको तो फिर सबको पता है, वो क्यों अटेंड कर रहा होता है ये क्लास, है ना. अगर मैं दोनों एज ए इनपुट देता हूं एडिशन करके तो आउटपुट क्या आएगा, y ऑफ t क्या आएगा. सो इन दोनों का एडिशन ना, मतलब यहाँ पे x ऑफ t की जगह पे x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t लिखना है अपने को. मतलब x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, और वो 2 भी तो है यहाँ पे, प्लस 2. अब मुझे बताओ कि इज 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2. 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 है क्या, नहीं है, क्योंकि एक 2 खा गया वो. So this system is not additive. 3 is not equals to 1 plus 2. This system is not additive. ठीक है, ये हुआ सिस्टम एडिटिव. अब ये कौन बताएगा, अगर ये समझ में आ गया है तो इसके जवाब मुझे बताओ फटाफट. बताओ ये कौन बताएगा, कौन है जो बताएगा ये. x ऑफ t इज इक्वल्स टू लेट्स से t टाइम्स x ऑफ t. बताओ ये एडिटिव है या नहीं. So additive. We'll tell that. एडिटिव. एडिटिव. Additive. Yes sir. Okay, very good. It is an additive system. Excellent. So fine. What I will do is I'll just change it a bit here. अब बताओ. Not Non-additive. Not additive. है? Not additive. Sure. Sir additive. Additive. Sir it's additive. दो ही तो जवाब है. दो ही जवाब है. चलो सॉल्व करते हैं ना, जब भी डाउट हो तो सॉल्व करते हैं. x1 ऑफ t दे दो. x1 ऑफ t दिया तो आउटपुट क्या आएगा भाई, t इंटू x1 ऑफ t बाई 2. ये हो गया पहला इक्वेशन. दूसरा x2 ऑफ t अगर इनपुट दिया तो क्या होगा, t इंटू x2 ऑफ t बाई 2. तीसरा मैंने दोनों का एडिशन दिया ना, x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t. इनका एडिशन देने के बाद क्या होगा, x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t. अब बताओ फटाफट क्या होगा ये, बाय 2. क्या हुआ ये, इज 3 इक्वल टू है क्या, Additive. हो गया फिर. यस इट इज एडिटिव. ओके, ये हुआ एडिटिव. एक थंब रूल बताओगे, एकदम सही वाला थंब रूल बताता हूँ, हमेशा याद रखोगे. इसमें
देखो ये थंब रूल है, याद नहीं करना है। ये एक्स ऑफ टी प्लस समथिंग आया ना तो ये लग गई इसकी फिर, है ना। इसमें अगर +2 +3 कुछ भी आ गया तो ये नॉन एडिटिव हो जाएगा। ठीक है, याद नहीं करना है, प्रूव करना है। इज अ काइंड ऑफ अ ट्रिक और हैक आई कैन टेल यू। ठीक है, चलो ठीक है। एडिटिव हमने पढ़ लिया, मेमोरी पढ़ लिया, कॉजालिटी पढ़ ली, और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं फटाफट। हमारे पास तो 1 ही घंटा है, अच्छे से पढ़ते हैं। देखो इतने फास्ट ट्रैक पे इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको कंप्रेस्ड फॉर्म में मिल रहे हैं। टेक एडवांटेज ऑफ इट। एडिटिव हो गई, मेमोरी लेस हो गया, मेमोरी हो गया, कॉजालिटी हो गई। हाँ, अभी इसके ऊपर आते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, बोलते हैं वो है स्टेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है इसमें स्टेबिलिटी के मामले में, क्योंकि ये तो मतलब हम ऐसे एग्जांपल्स देते हैं कि वो फंस जाए। तो ये स्टेबिलिटी बहुत फेवरेट है मेरा, तो मैं उसमें पकड़ लेता हूँ बच्चों को, कंसेप्ट वगैरह जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। तो स्टेबिलिटी क्या है भाई, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो खैर होते रहेगा। मैं आपको स्क्रीन जो है मैं थोड़ी देर के लिए अनशेयर कर देता हूँ। ठीक है, स्टॉप। यहाँ पे देखो, ये पेन है, ठीक है। ये पेन जो है मैंने ऐसे रखा, उसको थोड़ा सा हिलाया मैंने, ठीक है, ऐसे पेन को। ये क्या हुआ, थोड़े समय के बाद वो स्टेबल हो गया, राइट। थोड़े समय के बाद ऐसे स्टेबल हो गया। वी नो द व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल पोजीशन ऑफ इट। अब ये पेन को अगर मैं उल्टा रखूंगा यहाँ पे ऐसे, और मैं इसको थोड़ा ढील दूंगा, ये कहाँ पे गिरेगा ये नहीं पता मुझे। यही पेंडुलम के साथ होता है। पेंडुलम अगर ऐसा रखोगे ना तो बराबर स्टेबल हो जाएगा कुछ समय के बाद। पेंडुलम अगर ऐसा रखोगे तो आपको पता नहीं कैसे गिरेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज एन अनस्टेबल सिस्टम। ओके, और ये हुई स्टेबल सिस्टम। अब ये तो हुई देखने की बात, हम समझेंगे कैसे? हमको तो मैथ्स समझता है, पूरी दुनिया में एक ही लैंग्वेज है जो हर किसी को समझ में आती है, चाहे वो चाइनीज हो, रशियन हो या फिर अंग्रेजी हो। तो मैथ्स इज द ओनली लैंग्वेज विथ एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। हम मैथ्स में एक्सप्रेस करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे कोई भी चीज को अगर मैथ से रिलेट कर लो ना तो अच्छे से समझ में आ सकता है। आपका अगर मैथ सही हो तो आपका सब सही है। देखना यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या बोलता है कि अगर अगर आप देखो, मैं थोड़ा सा ठीक है पहले एक्सप्रेस कर लेता हूँ, फिर थोड़ा सा मैं एनालॉजी बताऊंगा। इफ इनपुट इज बाउंडेड, इफ बाउंडेड इनपुट gives बाउंडेड आउटपुट, स्पेलिंग गलत हो गया, बाउंडेड इनपुट gives bounded output, simple definition, then the system is said to be, then system is what is called as a BIBO stable, bounded input bounded output stable, BIBO stable। it stable बोल रहे हो डायरेक्टली, मैं BIBO इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हर जगह पे BIBO ही यूज करते हैं। दिस इज द, देखो स्टेबिलिटी काफी टाइप्स की होती है, लाइपनॉर स्टेबिलिटी है, यू नो काफी मैथ्स में अगर आप जाओगे तो बहुत सारी टाइप्स की स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे ऑलवेज एग्जाम में भी हम एक ही टाइप की स्टेबिलिटी पढ़ने वाला है, वो है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी, जिसको BIBO स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। अब ये है क्या, व्हाट डू मीन बाय बाउंडेड? बाउंडेड मतलब सिंपली उसका एम्पलीट्यूड देखो, कोई भी सिग्नल का एम्पलीट्यूड देखो, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो लिमिटेड है क्या? मतलब फॉर एग्जांपल एक ऐसा सिग्नल ले लो, ये सिग्नल ले लो, मान लो कि मैंने साइन वेव ले लिया फिर कॉस वेव ले ली, जो भी है, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहे वो प्लस में रहे या फिर माइनस में रहे, ये लिमिटेड है क्या? इज दैट फाइनाइट वैल्यू? इफ इट इज देन इट इज सेड टू बी अ बाउंडेड सिग्नल। ओके, फॉर एग्जांपल ये सिग्नल अगर मैंने लिया, अगर मान लो कि मैंने ये वाला सिग्नल लिया जो हमेशा बढ़ते जा रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल सिग्नल, लेट्स से e पावर माइनस e पावर प्लस t, ये सिग्नल अगर मैंने ले लिया तो ये सिग्नल जो है ये बाउंडेड है क्या? ये बाउंड नहीं है, दिस इज एन अनबाउंडेड सिग्नल। अनबाउंडेड मतलब उसका कोई मैं बाउंड नहीं बता सकता हूँ, ये मैं बता नहीं सकता कि ये 100 के बाद बढ़ेगा ही, इसकी मैक्सिमम लिमिट 1000 ही हो सकती है, 2000 हो सकती है, ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। ओके, सो सच सिग्नल्स आर कॉल्ड एज अनबाउंडेड सिग्नल्स। ओके, तो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर इनपुट बाउंडेड है तो आउटपुट भी बाउंडेड होगा, तो मैं कहूंगा कि वो सिस्टम जो है वो स्टेबल सिस्टम है। अब मैं इसकी एनालॉजी देता हूं, देखो थोड़ा सा फनी होगा पर इसको बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे आप। आपको हमेशा जो है ना इनपुट बाउंडेड देना है, ये ध्यान में रखना है कि ऑलवेज यू हैव टू गिव बाउंडेड इनपुट एंड देन चेक
whether the output is also bounded. अब मैं इसके एक एग्जांपल दूंगा. अब मान लो कि भाई एक है आपके साथ एक आदमी है, उसके साथ आपने प्यार से बात की, आपसे अच्छे से बात की, उसने भी आपसे अच्छे से बात की, ठीक है. बाउंडेड इनपुट, अच्छे से बात करना, उसने भी अच्छे से बात की, इट इज अ बाउंडेड आउटपुट. अब मान लो कि एक दूसरा आदमी है, आप उससे अच्छे से बात कर रहे हो, वो गालियां पे गालियां दे रहा है, वो आपको मार रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज एन अनबाउंडेड आउटपुट. ओके, सो बाउंडेड आउटपुट, आप विनम्र के साथ बात करके भी आपको अगर अच्छे से आउटपुट नहीं मिलता है तो उसे कहेंगे अनस्टेबल सिस्टम. पर हमको विनम्र ही रहना है, मतलब इनपुट जो है हमको बाउंडेड ही देना है. मतलब क्या, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए समझेगा आपको. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. हमेशा विनम्र वाणी रखो. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स ऑफ टी, वही लेते हैं, सॉरी एक्स ऑफ टी नहीं, वाई ऑफ, ठीक है. आउटपुट y ऑफ t, लेट्स से इट इज इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस 2. एक सिंपल एग्जांपल लिया. इज इट अ बाउंडेड सिस्टम? जिसको चेक करना है तो पहले इनपुट बाउंडेड दो, मतलब इनपुट जो है वो फाइनाइट दो. अगर मान लो कि इनपुट का बाउंड, इसको मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं किया ना, मैं इसको मैथमेटिकली पहले एक्सप्रेस कर देता हूँ डेफिनेशन को, देन वी विल टेक द एग्जांपल. ओके, इसको मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देता हूँ. व्हाट डू मीन बाय दिस डेफिनेशन? दिस डेफिनेशन सेज दैट इफ द इनपुट इज बाउंडेड, मतलब इनपुट जो है मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t, मतलब ये पॉजिटिव में रहा या फिर निगेटिव में रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t. ओके, और या फिर ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे. इफ इट इज लेस देन सम फाइनाइट वैल्यू, लेट्स से bx, इट इज अ बाउंड ऑन x. ओके, इफ इट इज लेस देन सम फाइनाइट वैल्यू, ये फाइनाइट है ना, मतलब ये इंफिनिटी से कम होगा. एंड इफ द आउटपुट is also bounded, for a bounded input, if the output, let's say output का bound है let's say by, मतलब कोई भी वैल्यू, वो भी अगर less than infinity है, then we can say that the system is a stable system. देखो इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, bounded input must give you bounded output. आप विनम्र के साथ बात करो, मतलब क्या, आप less than infinite जो है उसका bounded input दो, तो आपको output भी अगर bounded मिल रहा हो, then you can say that the system is बीबो स्टेबल सिस्टम. एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे इसको. देखो यहाँ पे y of t equals to x of t plus 2. इनपुट अगर बाउंडेड है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इनपुट बाउंडेड है, इनपुट हमको बाउंडेड देना है, मतलब लेट्स से कोई भी फाइनाइट वैल्यू ले लो, लेट्स से 100 ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, व्हाटएवर इट मे बी. इन जनरल लेट इट बी bk, bx. ओके, इट्स अ फाइनाइट बाउंड ऑन इनपुट. अगर मैं इनपुट बाउंडेड देता हूं तो आउटपुट का बाउंड क्या हो रहा है? सो इफ bx इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट, what is the maximum value of the output? It is bx plus 2, right? It is bx plus 2. This is nothing but by मतलब maximum value of the output. ये इनफाइनाइट से कम है क्या? ऑफ कोर्स कम है, क्योंकि bx अगर फाइनाइट है तो वो सिर्फ 2 से बढ़ेगा, इंफिनिटी से थोड़ी बढ़ेगा. So then this system is said to be a Bibo stable system because this satisfies this condition. Which condition? If x of t is bounded, x of t जो है इसकी bounded है ना, this is less than some bx. What is that bx? Bx could be any value, but it is less than infinite. Then y of t का bound भी जो है, magnitude of y of t is also less than some finite value. Let it be by. What is bx and by? Bx, if it is 2, the by is going to be 4. Bx is, if it is 4, then by is going to be 6 and so on, plus 2 से add हो रहा है सिर्फ. Okay, but this is less than infinite, then it is said to be a Bibo stable system. So yes, this is a stable system. ये बंदा विनम्र है. Okay, अब ये अनस्टेबल जो बदमाश लोग रहते हैं उसका मैं बताता हूँ एग्जाम्पल. ओके, देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम. एग्जाम्पल 2, देखो यहाँ पे, लेट्स से y of t equals to t times x of t. ये ले लिया अगर मैंने. okay? Take this example as y of t equals to t times x of t. अभी इसको देखो क्या हो रहा है. विनम्र के साथ बात करो. Input give finite input. Okay, I mean the bound on the input must be finite. Means what? If we give a bounded input, it must give a bounded output. So let's see, if bx, if bx, that means the bound on the input is less than bx, which is less than infinite, then let's see the output bound. Output का bound क्या होगा?
अब आउटपुट का ये अगर bx है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज bx, व्हाट कैन यू टेल मी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट? अगर इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू लेट्स से 100 है, तो आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू आप बता सकते हो क्या इसमें? मुझे क्या गारंटी है कि आउटपुट की वैल्यू जो है वो 1000 से कम होगी, 2000 से कम होगी, 3000 से कम होगी? हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये t जो है ये चलते जा रहा है. वी कांट, I mean, no matter what the value you fix at certain instance of time, it is going to, cross that bound, and therefore the signal is going to be out of bound or unbounded. Therefore, there is no bound on the output that we can keep. So this y of t is tending towards infinite. Therefore, this system is said to be an unstable system. Unstable system. समझ में आ रहा है? इनपुट को जाए, इनपुट अगर बाउंडेड है तो आउटपुट भी बाउंडेड होना चाहिए. अगर नहीं है, इफ वी कांट फाइंड अ बाउंड, अगर हमें फाइनाइट वैल्यू अगर नहीं मिल पा रही है, देन वी कैन से दैट द सिस्टम इज एन अनस्टेबल सिस्टम. और एग्जांपल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे. y of t is equal to x of t by t. बताओ ये सिस्टम जो है ये बाउंडेड है, ये स्टेबल है या नहीं है? अनस्टेबल. स्टेबल सिस्टम. Unstable. Yes, very good. So it's an unstable system because, see, as I said, this must be true. कोई भी डेफिनेशन, यहाँ पे हमने जितनी भी डेफिनेशंस दिखी, इट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ t. ओके, ये जो मैंने डेफिनेशन बोली, दिस मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ t. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गिवन एग्जांपल में कि t इक्वल्स टू 0 पे वो इनफाइनाइट बूस्ट हो रहा है, मतलब x ऑफ t की कोई भी अगर फाइनाइट वैल्यू ले ली, लेट्स से bx, ओके, पर t इक्वल्स टू जैसे जैसे वो 0 की तरफ जाएगा, एज t टेंड्स टू 0, ये आउटपुट का बाउंड जो है वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा. That means for t tending towards 0, output y of t is tending towards infinite. So this is an unstable system. Unstable system. चलो अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूं, वो जिसको आ गया फिर उसको फिर सब समझ में आ गया. ठीक है, कौन लेता है चैलेंज? ध्यान रखो, है ना, कौन है वो? लेट्स सी. ओके, who will tell the correct answer? देखो, जो दो ही जवाब है तो एक ही जवाब देना. ठीक है, डोंट चेंज योर आंसर. एग्जाम्पल 4, y ऑफ n इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, e पावर x ऑफ n. कौन जवाब देगा फटाफट? Unstable. है Stable. ओके, यस, वेरी गुड. जिन्होंने स्टेबल बोला है वो सही है. देखो यहाँ पे, अगर इनपुट बाउंडेड है, मतलब क्या, अगर ये इनपुट जो है ना x ऑफ t, अगर मान लो कि वो 100 है, 200 है, कोई भी बाउंड ले लो, कोई भी फाइनाइट वैल्यू ले लो, आउटपुट जो है वो e पावर दैट वैल्यू रहेगा, दैट इज वेरी वेल लेस देन इनफाइनाइट. ये बच्चे क्या करते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ये अनबाउंडेड है करके उसको बोल देते कि नहीं 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 नहीं, ये जो है ना, ये जो है ये अनबाउंडेड सिग्नल है. नहीं, फॉर अ बाउंडेड इनपुट हमेशा हम विनम्र के साथ बात करेंगे तो आउटपुट भी, सामने वाला भी विनम्र के साथ बात करना चाहिए. ये कर रहा है ना बात, आप अगर विनम्र के साथ बात करोगे, मतलब ये अगर इनपुट अगर फाइनाइट दोगे तो आउटपुट भी तो फाइनाइट ही आ रहा है. मतलब लेट्स से x of t is 2, x of n is 2, it is going to be e power 2, and this is well finite value. e power 2 is a scalar. okay, कैलसी भी निकाल लो जैसे निकालना है ना. so this is called as a stable system. This is very well a stable system. This is called as a stable system. ऑलराइट, सो हमने कितनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी. देखो, मेमोरी पढ़ी, कॉजालिटी पढ़ी, स्टेबिलिटी पढ़ी, और क्या पढ़ा? मेमोरी, कॉजल, स्टेबल, और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम. एडिटिविटी भी पढ़ी. अब हाँ, एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो है होमोजीनिटी, है ना, होमोजीनिटी. और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, होमोजीनिटी प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फोर्थ प्रॉपर्टी, पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी है, बट इट इज होमोजीनिटी, या फिर स्केलर प्रॉपर्टी, स्केलेबिलिटी, उसको बोलेंगे स्केलेबिलिटी प्रॉपर्टी. अब ये क्या कहती है ना, सुनो, ये बोलता है कि अगर इनपुट को मैंने स्केल किया और आउटपुट भी उसी अमाउंट से अगर स्केल हुआ,
तो उसको बोलेंगे स्केलेबल सिस्टम, या फिर उसको बोलेंगे कि होमोजीनियस प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो कि अगर मैं आवाज एकदम स्लोली बात कर रहा हूँ, देखो बहुत स्लोली बात कर रहा हूँ, तो आपको आउटपुट भी स्लोली आएगा, ओके, बहुत कम आवाज आएगी। अगर मैं बहुत जोर से अगर बात करता हूं तो आपको बहुत जोर से आउटपुट आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज होमोजीनिटी या फिर स्केलेबिलिटी प्रॉपर्टी। मतलब क्या, देखो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई इनपुट है और उसका अगर आउटपुट y ऑफ t है, अगर मैं इनपुट को स्केल करता हूं लेट्स से बाय फैक्टर ऑफ c, ओके, लेट इट बी अ फैक्टर ऑफ c टाइम्स x of t must give c times y of t, and this must be true for any value of c can be a complex number also, c and t। वही वैल्यू होनी चाहिए। अगर मान लो कि मैं दुगने आवाज में बात कर रहा हूं, लाउडली अगर बात कर रहा हूं, तो दुगने आवाज में आपको सुनाई आ रहा होगा, वही सेम स्केलर वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं 2 से स्केल कर रहा हूं इनपुट और अगर आपको 4 से आउटपुट आ रहा है, तो वो स्केलेबिलिटी नहीं है, वो होमोजेनिटी प्रॉपर्टी नहीं है। सी मस्ट बी सेम, ओके, सेम सी मस्ट बी देयर, ओके। ये सी जो है यहाँ पे जो है वो भी यहीं पे रहना चाहिए, ओके। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल लेंगे, है ना, वो एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। x ऑफ t प्लस 1, बताओ ये स्केलेबल सिस्टम है या नहीं, इज दिस एन होमोजीनियस सिस्टम और नॉट। तो हमको क्या करना है, हमेशा जैसे प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम है, हाँ है, बताओ। Not an homogeneous system. It's a non-homogeneous. Yes, you are all correct. Let's see whether it is non-homogeneous. हम क्या करेंगे, इनपुट को स्केल करेंगे, स्केल इनपुट। इनपुट को स्केल करने के बाद क्या मिलेगा, मतलब x ऑफ t को c से मल्टीप्लाई किया ना, मतलब c टाइम्स x ऑफ t is going to give you what, इनपुट को स्केल करना है, मतलब क्या, आउटपुट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इनपुट को स्केल करना है ना, मतलब ये आउटपुट क्या होगा, c टाइम्स x ऑफ t प्लस 1, राइट। अगर आउटपुट को अगर मैंने डायरेक्टली स्केल किया, स्केल आउटपुट डायरेक्टली, स्केलिंग द आउटपुट, आउटपुट को अगर स्केल किया मतलब c इंटू वाई ऑफ टी, c इंटू वाई ऑफ टी का इक्वेशन क्या हुआ, c इंटू वाई ऑफ टी का c इंटू ये पूरे के पूरे y ऑफ टी को मैंने मल्टीप्लाई करना है, मतलब c इंटू एक्स ऑफ टी प्लस c होगा ना, पूरे पूरे इक्वेशन को, पूरे y ऑफ t को अगर मैंने स्केल किया तो ये होगा। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 and equation 2 they are not the same, equation 1 and equation 2 are not the same, therefore this system is said to be what, it's a non-homogeneous system। It's a non-homogeneous system। अब कौन बताएगा, फटाफट फटाफट बताओ, कौन बताएगा ये सिस्टम ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2, लेट्स से y of t is equals to x of t multiplied by cos t। कौन बताएगा फटाफट, क्विक। Yeah, please mute your microphones, just unmute only if you want to answer the question। Yeah, Homogeneous. is it a homogeneous? So it's homogeneous. Yes, very good. It's a homogeneous system. So I won't be deriving it, so you can derive it. It is homogeneous system। Very good। So this is homogeneous। थोड़ी सी हम complexity बढ़ाएंगे अभी, let's say y of t, y of n ले लेते हैं, let's say x of t square। कौन बताएगा फटाफट फटाफट फटाफट। Homogeneous. So it's a homogeneous. Non-homogeneous। It is not homogeneous system, okay। Why, just check it, okay, scale input, what is the output, so y of n is going to be, that means what, scaling the input means what, c into x of n, sorry यहाँ पे t ले दिया मैंने, यहाँ पे n चाहिए था, है ना, यहाँ पे n चाहिए था, आप समझ लो, भावनाओं को समझो, x of n का स्क्वायर, so this is going to be scaling the input, scale input
that means what? C times x of n is going to give you what? इनपुट को स्केल कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, y of n is equals to c square x square n. ओके, क्योंकि ये x of n की जगह पे मैंने c into x of n रख दिया. नाउ स्केल द आउटपुट, स्केल आउटपुट डायरेक्टली, स्केल द आउटपुट डायरेक्टली मतलब क्या, आउटपुट को स्केल किया c टाइम्स y of n, ये क्या हुआ, आउटपुट को डायरेक्टली मतलब c इंटू जो भी y of n हो गया, y of n क्या है, x square into x square of n. Are they two the same? No, they are not the same. Let it be 1, let it be 2. So 1 is, so well, 1 is not equals to 2. So this is not homogeneous. ऑलराइट, सो अभी मैं सिस्टम देता हूँ, ये एडिटिव हो गया, और एक लास्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, ये आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर, और हम और एक प्रॉपर्टी देखेंगे, लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, तो वो है टाइम इनवेरिएंस. ओके, हम प्रॉपर्टी और देखने वाले हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी, पता नहीं अभी कौन सी प्रॉपर्टी, फिफ्थ है या सिक्स्थ है, तो इट इज टाइम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी. टाइम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, टाइम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी. टाइम इनवेरिएंस क्या बोलती है, अगर मैंने इनपुट को डिले किया तो आउटपुट भी सेम अमाउंट से अगर डिले हो रहा है तो वो कहेंगे कि सिस्टम हैज टाइम इनवेरिएंस. जैसे मान लो कि मैंने कल लेक्चर ले रहा था, कल अगर मैंने हेलो बोला तो आपने कल हेलो सुना ना, आज अगर मैं हेलो बोलूंगा तो उसी हेलो को आप आज सुनोगे. इनपुट इज डिले, इनपुट सेम है हेलो, उसको मैंने टाइम डिले किया, कल की जगह पे आज बोला, तो आउटपुट भी कल की जगह पे आ जाएगा. तो मतलब क्या, इफ नाउ आई शुड एक्सप्रेस दैट मैथमेटिकली, इफ इनपुट is giving some output, then the delayed input x of t minus t naught, if it is giving y of t minus t naught, and this must be valid for all t, if then the system is said to be, then system is time invariant. Okay, example लेते हैं, example देखो यहाँ पे टाइम कम है. एग्जाम्पल 1, लेट्स से y of t इक्वल्स टू t टाइम्स x of t. क्या ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या नहीं, इसको हम कैसे चेक करेंगे, इनपुट दो, इनपुट x of t अगर इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या आएगा, y of t इज t टाइम्स, ये तो दिया है. अगर मान लो कि मैंने इस इनपुट को अगर डिले कर दिया तो आउटपुट क्या आएगा, डिलेड इनपुट मस्ट गिव यू डिलेड आउटपुट. सो अगर मैंने इनपुट को डिले किया तो क्या आएगा, t टाइम्स x ऑफ t माइनस t नॉट. अगर मैंने आउटपुट को, सो डिलेइंग इनपुट, डिले इनपुट, देन डिले आउटपुट डायरेक्टली. सो आउटपुट को अगर डिले किया मतलब y ऑफ t माइनस t नॉट को अगर मैंने लिखूं तो क्या आएगा, y ऑफ t माइनस t नॉट इज व्हाट, जहां जहां पे t है वहां पे t माइनस t नॉट, जहां जहां पे t है वहां पे t माइनस t नॉट, जहां जहां पे t है वहां पे t माइनस t नॉट. क्या ये दो इक्वेशन सेम है, नहीं है, तो वी से दैट दिस सिस्टम इज नॉट टाइम इनवेरिएंट. ये वक्त के साथ साथ बदल रही है, दैट मींस वी कैन आल्सो से दैट दिस सिस्टम इज टाइम वैरिंग. दिस सिस्टम इज टाइम वैरिंग बोलो या नॉट टाइम इनवेरिएंट बोलो, सेम ही है. दिस इज टाइम वैरिंग सिस्टम. एक और एग्जांपल लेते, कौन बताएगा फटाफट, अपने पास सिर्फ 4 मिनट बाकी है, बताओ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, कौन बताएगा, लेट्स सी. ओके, एग्जांपल 2. या वी आर, आई थिंक, या वी नीड टू फिनिश जस्ट लास्ट वन. दिस इज एनीवे द लास्ट प्रॉपर्टी, सो लेट्स सी. या हु इज गोइंग टू टेल मी दिस, y of t equals to x of t time invariant, so x of t square. We'll tell that the system is time varying or invariant. Time varying. Quick. It is time varying. Very good. Time So varying. take this. Yes, very good. It is time varying. Take this. Bolo. Sir, it's time invariant. Time invariant. It is time Time varying. Okay. This is time varying.
बोथ द एग्जाम्पल्स आर ऑफ टाइम वैरिंग. क्यों? क्योंकि पहले अगर डिले इनपुट दिया तो -t-1 होगा, इनपुट डिले किया तो, and if I delay the output, it is going to be x of -t-1. Okay, in that sense it is time varying. Okay, so एक एग्जाम्पल जिसमें सबकी सब प्रॉपर्टीज आप बोल पाओ, अब तक के जितने भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई है, एक फाइनल एग्जाम्पल बताओ, कौन बताएगा? x of t equals to let's say 3 cos t plus 1 into x square x of t plus 3 plus 4. Who will tell this answer? Non-varying. First of all, नहीं, सबके सब प्रॉपर्टीज बोल. Is it additive? First of all, No, sir. Yes, sir. not Not additive. क्योंकि प्लस आ गया ना, प्लस आ गया, नॉट एडिटिव. बोलो दूसरी प्रॉपर्टी. इज इट विथ मेमोरी और मेमोरीलेस? बताओ फटाफट. With memory. Some memory. इट इज With memory. विथ मेमोरी. यस, मैं लिखने से पहले जवाब दो, ठीक है? हाँ, बताओ. अभी ये कॉजल है क्या? कॉजल बताओ, कॉजल है क्या? No, sir. Non-causal, sir. Non-causal. यस, Non-causal, sir. नॉट कॉजल. वेरी गुड. अब बताओ, ये स्टेबल है क्या? स्टेबल. Yes. No, sir. No. Not It's non-stable. stable, sir. It is stable. Okay, it is time varying. cos 0 जो है, cos 0 या फिर कहीं भी जाएगा, ये 0 थोड़ी होगा, है ना? दिस वैल्यूज आर स्टेबल. ओके, हाँ, अब बताओ, टाइम वैरिंग या टाइम इनवेरिएंट Time invariant. है? Time varying. Yes, Time varying, sir. varying. All right, I think we have seen a lot of examples and similar to them. मैं एग्जांपल देता हूँ. अब गेट के जो है ना, मैंने दिए नहीं ना डायरेक्टली, तो आपको ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ ताकि हम कल अगर मिलेंगे तो आप देख पाओ. गेट 2011 में आया था, ठीक है? ये सवाल देख लो. sin 5 pi n by 6 into x of n whether it is stable. एक और इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी भी है. इन्वर्टिबल मतलब आउटपुट से अगर आप इनपुट जनरेट कर पाओ वापस, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल. ठीक, वो हमने कवर नहीं किया है, बट यू कैन टेक इट दैट एज अ टेक अवे पॉइंट. ओके, इन्वर्टिबल मींस आउटपुट से अपन इनपुट जो है किसी स्केलिंग ऑपरेशन से अगर हम रिकवर कर पाए, देन इट इज कॉल्ड एज अ इन्वर्टिबल सिस्टम. ये और दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ. गेट 2017 में आया था. आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, मैं जस्ट स्किप कर रहा हूँ बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम. इसके बाद ये 2003 में आया था. इसी टाइप के सवाल जो है ये आते रहते हैं, है ना? सो ऑल राइट, सो विल स्टॉप हियर. ओवर टू यू, रोहिणी मैम. आई एम डन फ्रॉम माय साइड. Yes, sir. Thank you so much, sir. All right. Hello. Yes, sir. Yeah, I'll take the leave. I'll take your leave. Yeah. Thank you so much, sir, for in this informative lecture today's. Sir, tomorrow's session is at 11:30 p.m. a.m. Sorry. Okay, fine. I'll do that. Okay. Sir. Okay. See you tomorrow, sir. Okay, thank you. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Hmm?